ओके। ओके। नमस्कार एवरीबॉडी। आप सबको कोर शारदा टीम की तरफ से आप सबका स्वागत। आप आप सब लोगों ने शारदा लिपि सीखने की इच्छा प्रकट की है। और ये क्लासेस हमारी जैसे मैंने बोला था, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है। अगर आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो मुझे अलग से बोल दीजिए, सो दैट आई विल एड यू इनटू द ग्रुप। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, देर आर सम पीपल हु मे नॉट बी कंफर्टेबल विद हिंदी, सो आई मे हैव टू यूज इंग्लिश ऑल्सो इन माई कम्युनिकेशन। सो अगेन वेलकम। एंड ये जो क्लासेस है हमारी, ये सैटरडे संडे फ्रॉम 10 o'clock to 11 o'clock. If anything in between, if I mean any emergency, those things will be notified in advance. And uh, classes will go. We will have around I would say 14 to 15 classes. And my request to you is, to everybody, just stay patient and continue it. Don't break in between, because then it will be very difficult to cope up. फिर आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आपने एक भी क्लास मिस की, तो वापस आपको वो आना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप देख लीजिए। हर क्लास के बाद मैं वीडियो पोस्ट करूंगा जो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर के देश से है, जिनके लिए जो टाइम टाइम जोन है वो अलग है। तो उनके लिए ये जो क्लासेस रहेंगी, ये रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। और हर क्लास के बाद जो भी कम्युनिकेशन होगा मैं ग्रुप में डालूंगा। इसमें एक्सपेक्टेशन है कि हर क्लास के बाद आपके पास 2 घंटे जो हम देते हैं सैटरडे संडे, आप एक हफ्ते का एक्स्ट्रा आधा घंटा दे दीजिए, फिर 15-15 मिनट 2 दिन के, ताकि जो भी आपकी असाइनमेंट्स होंगी आप थोड़ा उसमें काम करें। मतलब जो भी हम आपको जो पढ़ेंगे उसको अब रिवाइज करना है, उसको अब थोड़ा सा अपने हिसाब से रिवाइज करना है। और कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो आप टीम में पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट्स भी एक ड्राइव है। आई विल शेयर द ड्राइव लोकेशन। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शुड सबमिट द assignments into that drive location. Just save a picture as a JPG file. No need to scan it, no need to do anything. Just take a picture from your mobile and just JPG file, store in the drive location, and with your name, so that I know who has done it. So like example, if your name is Anil, so what you will do, you will write anil.jpg with your name, so that I will know who has written it. And you can also write your name on top of the paper also. But preferably that file name should be with the uh, your name. So without taking much time, because there are students here, it is my interest to also give little bit about the background about the Sharda script. And then we will continue our start like classes. Just always we will try to keep every classes with Mangala Charam. So we will always recite a mantra, and this mantra is about letter A, because we are doing Akshar Gyan, right? So what is the importance? A is Amrita. In Kashmir Shaivism, we basically it is. I will just this is from Abhinav Gupta, so I will just recite this mantra, and then we will continue. Om Amritam Anantam Anutaram Aghora Shodash Shakti Chakra Gatam On Manaspati Nirudi Prathamopadantak Mande. So this is the first letter O. I would like to just give a background. शारदा लिपि का थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे. So this script was I would say that prevalent, especially in whole complete northern part of India. And when we look at the history, it was Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, even in some parts of Pakistan, and even Afghanistan also. And of course evolved from Brahmi.
based on the latest whatever manuscripts we have seen, based on the carbon datings, we see that the Sharda script is as old as the 3rd century AD. Anybody has a questions, आप hands हाथ up करके या unmute करके पूछ सकते हैं, no problem. So, this is what different manuscripts or different ways where we find these manuscripts on the Burj leaves or on man's papers also. There are also what we have also found in the coins and also in the stone engravings also. This is just one picture which I have tried to capture here. I will run through the slides fast so that we focus on our classes. Just a manuscript. This is what I was talking about, the Bakshali manuscript. This is the oldest manuscript which was found, in fact, somewhere in Afghanistan, and this is dated to 3rd century AD. So based on this, we are saying that Sharda is as old as the 3rd century AD. There are some people who say that no, it cannot be so old, but based on the evidences, based on the carbon datings, that is what they have found. And this manuscript is, if you look at here, I maybe a little bit pictorially, if you understand it, this manuscript is a very advanced mathematical text, which was found. Okay, why Sharda Lipi? क्या छू? मतलब what is the importance? Because it was the script, mother script of Kashmir, as I said, and this is there was one picture from a Western scholar where which I copied, and I asked my student to copy a similar. If we paint that Malini with the Sharda script, so this is how beautiful Malini looks. डेफिनेटली जब आप शारदा लिपि अभी सीखेंगे आपको समझ आएगा कि ये लिपि बहुत सुंदर है, बहुत यू विल रियली एंजॉय दिस जर्नी। जो भी हम सैटरडे संडे करेंगे आपको अच्छा लगेगा। हम मेरे साथ 1 घंटा जो जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम अक्षर पढ़ेंगे, फिर हम उसको कंजंट्स पढ़ेंगे, शब्द बनाना सीखेंगे। अब सब लोगों को अच्छा लगेगा ये चीज देखे। सो देर इज दिस ओके सम historical evidences of Sharda Peetha, because we call basically Kashmir Desh as a Sharda Desh. So some evidence about that. Let me not go through that. And there are some why this script is important and why should we, because our team is working on the revival of the script. So one is, yes, we are of course working on the manuscripts. Many of our teams are currently working on the manuscript, but it is also very important because we are trying to revive this, because it was an original script and we do not see historically any reason that this script would have gone extinct. Yes, definitely political reasons are there, or whatever happened in because of Islamic invasion, others. But the script is as good as Devanagari. It is as mapped. All the aksharas in Sharda Lipi are exactly mapped with Devanagari, the one and one. There is no difference. So this is one basically in Saundra Lahari. I have just taken one letter E, how we write in Sharda Lipi, and that is this is another point how this because here it is it this shloka mantra talks about mother with the letter E. And then Adi Shankaracharya basically has composed this, and there also basically it is talking about Mukham Bindu Kritvaha. So where then we can understand that how old it is. I do not know. So we have a reference of these Sharda characters even in Saundra Lahari also. So I want to just give a point here. Okay, some of our what we have done so far. So what are we trying to our journey complete? We are trying to have propagate this script so that it is accepted. We are also working on the digitization. We have our own application, mobile app इन शारदा स्क्रिप्ट में हमारी मोबाइल ऐप है, आप टाइप कर सकते हैं शारदा लिपि में, वो फॉन्ट्स भी रिलीज है, एंड देर आर अदर works also which we are doing. I will come to that. There's some journey of our team where we started. In fact, we started earlier 2014 से भी पहले, but our team, our organization as an NGO for the Sharda Lipi got recognized in 2020.
as an NGO under Section 8 of Indian government. I don't want to take much time, so these are some collaborations and some very important because our team also works with various organizations in on different projects related to the Sharda script, because there are a lot of scholars who work on the Indic knowledge. So we have different collaborations, and basically we also help institutions इन बेसिकली प्रमोटिंग द स्क्रिप्ट लाइक आई नो इस क्लास में भी बहुत सारे हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है इन टुडेज क्लास आल्सो. सो आई वुड से दैट अगर आपको लगता है, इफ यू फील कि मतलब आपके इंस्टीट्यूट में है इंटरेस्ट है एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू डू समथिंग ऑन सम मैनस्क्रिप्ट और व्हाटएवर, definitely we can conduct one training sessions on the Sharda script. It will not take time. For those classes, if we do it classroom trainings, we can complete everything in 2 to 3 days time. It is not, ये जो लिपि है ये सीखना बहुत बहुत आसान है, इसमें ये डिफिकल्ट नहीं है. Okay, some testimonials from our team. I can share that later, so let me know. So these are some of our things what we have done. We have published our own primers. हमारी अपनी पुस्तकें हैं जिससे आप शारदा लिपि सीख सकते हैं. तो ये एक ये ऊपर वाली इट इज मेनली फर्स्ट अल्फाबेट्स, संयुक्त अक्षरास. और उसके बाद एक और पुस्तक इस कौशल प्रवेशिका. दिस वाज आवर अनदर स्टेप वेयर हाउ टू राइट कश्मीरी इन शारदा लिपि. एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू नो कि हमारा ये जो कश्मीरी फॉन्ट है, बिकॉज देर आर सम स्पेशल वॉवेल्स, दोज ऑल्सो हैव बीन approved by the Unicode. Recently, I think September, they will get released also by the Unicode. So we are working on different platforms, different forums to सी की शारदा लिपि किसी लिपि से अलग ना रहे भारत वर्ष में. अगर यहाँ इतनी सारी लिपियां हैं, हमारी एक लिपि थोड़ी सी लुप्त हुई थी, हम इसको कोशिश कर रहे हैं इसको वापस लाने की. ये एक और मातृका है. सो आप मातृका सब्सक्राइब कर सकते हैं. हर 3 महीने में हम ये मातृका मैगजीन जर्नल निकालते हैं. इसमें जो भी हमारी टीम काम करती है मैक्सिमम इसमें पब्लिश होता है. ये लगभग 20 से 25 पेज की एक जर्नल रहती है. और लगभग आज के डेट में 1,000 से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स है जो जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. हम किसी को चार्ज नहीं करते, बट दे गेट इट ऑनलाइन. ये जो राइट साइड में इट इज ए शारदा ऐप, एंड्रॉइड में है. अभी हमारी टीम उस पर काम कर रही है कि ऐप सॉरी एप्पल के जो मैक मशीन्स है उसके लिए भी कंपेटेबिलिटी हो. बट आप शारदा लिपि डायरेक्ट अभी ये ऊपर अगर देख लीजिए, नमस्ते शारदे देवी, देवनागरी से डायरेक्ट ये ट्रांसलेट करके शारदा में आया है ऐसे. और बाकी शारदा फॉन्ट है, आप इंस्टॉल करके डायरेक्टली शारदा भी लिख सकते हैं. ये ऐप है सतीसर शारदा. अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको वो मिलेगी शारदा ऐप. कुछ रिकॉग्नाइजेशंस हमारी टीम की, ज्यादा इसके बारे में बस मतलब देयर वर फ्यू dignitaries or celebrities who appreciated our work, so we have just kept it here. This was another one of our best workshop which we did in Sringeri. लगभग 1.5 साल पहले हमने श्रृंगेरी में एक शिविर किया शारदा लिपि के लिए. ये सारे जो भी सामने आपके सामने बैठे हैं सदगुरु शंकराचार्य जी के सामने. और हमने वहाँ 2 दिन का शिविर करके सब लोगों को शारदा का ये दे दिया. ओके, कुछ सम स्क्रिप्ट कितनी सुंदर है, कुछ लोगों की ग्रीटिंग्स, जो भी स्टूडेंट्स का काम है वगैरह वगैरह. ये जो काम कम करते हैं मैनस्क्रिप्ट पर, हमारी टीम कैसे काम करती है. कुछ मैनस्क्रिप्ट ऐसे जो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई टेक्स्ट है, तो ऐसे ऐसे काम हम उठाते हैं और उसके ऊपर देन फिर वी वर्क ऑन ऑन दोज मैनस्क्रिप्ट. अभी हमारी टीम में बहुत सारे संस्कृत विद्वान है, संस्कृत स्कॉलर्स है जो हमारे से जुड़े हैं. बिल्कुल वॉलेंटरी सब सब लोग काम करते हैं. जितना हमारी बैंडविड्थ है उसके हिसाब से सब लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं और इसमें भी अपना समय देते हैं. तो यही मेरी भी अपेक्षा है कि जब आप ये शारदा सीखें, आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर बने शारदा लिपि के. और जो भी आपसे जितना भी योगदान हो, जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रोपेगेशन of the Sharda script, please do that, and you can definitely be part of our team, or whatever way you want to do it, uh, it will be always welcome.
So there are some these we should never forget all those people who have really contributed. Because of these, today whatever Sharda Lipi is available with us and its importance we understand, it is all about because of all the scholars what I have listed. I think if I start from George Fuller, who had come to Kashmir, I think in 18th century. So if he would not have taken so much of interest in those manuscripts which he was basically looking at, and then later his student Stein came, Karl Burkhardt came, and all other, all whatever I have seen. In fact, in our early trainings, we used to have this was our library. I would say that भगवत गीता हमारी शारदा लिपि के लिए जॉर्ज ग्रेयरसन की जो ऑन द शारदा अल्फाबेट्स जो उनकी पब्लिकेशंस है। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको गूगल में भी मिलेंगे, स्पेशली जॉर्ज ग्रेयरसन का। अगर मैं लिंक भेज सकता हूं, मगर आप लोग खुद भी रिसर्च करके डेफिनेटली आप कर सकते। भूषण लाल डेम्बी जी, उनकी एक पुस्तक है, अगले क्लास में कल कोशिश करूंगा दिखाने की। अगर शारदा लिपि पर सच में रिसर्च हुआ है, उनके अल्फाबेट्स पर कैसे, कौन से थर्ड सेंचुरी से लेकर उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, उनका बहुत ही अच्छा योगदान है इस शारदा लिपि पर। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको हम इधर बेसिकली हम ये मानते हैं। सो ये हमारी कोर शारदा टीम है, जो मैंने बोला एज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम, एंड जिसके प्लेटफॉर्म पर हम ये सब काम करते हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे, कोशिश करें आपकी एक नोटबुक और कलम, प्रेफरेबली अगर आपके पास कलम के एक वीडियो है कैसे बनाते हैं, शायद मुश्किल हो जाएगा। आई डो नॉट नो एनीबॉडी हैज दिस, कैन प्रिपेयर इट और नहीं। अगर नहीं है तो सिंपल एक पेंसिल ले लीजिए, बस उस पर काम कीजिए। पेन, बॉल पॉइंट पेन मत लीजिए, क्योंकि उसमें हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती है। कुछ अमेजन में ऐसे पेन्स आते हैं जो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, 150 से 200 रुपए का मिलेगा ये पेन। अगर आप ऑर्डर कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है। सिर्फ अगर आप पेंसिल और एक नोटबुक अपने पास रखेंगे, नोटबुक आपकी सिर्फ शारदा लिपि के लिए ही रख ले, ये कि नहीं कि मतलब उसमें घर का हिसाब किताब भी है या कुछ और भी है। अलग से एक पुस्तक, एक नोटबुक आप रखें शारदा लिपि के लिए, और सारी जितना जो भी आप अभ्यास करेंगे वो उसी पुस्तक में होगा, उसमें आपके नोट्स भी होंगे। क्योंकि इस एक और चीज है कि बहुत सारे चीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, नोट करनी है। तो वो चीज अगर आप पुस्तक में नोट्स लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये हमारा ओवरऑल सिलेबस रहेगा। कोशिश करेंगे कि इसको 18 क्लास में तो नहीं जाएगा, जो 13-14 क्लास तक चलेंगे, बट ओवरऑल ऐसे ये हमारा सिलेबस रहता है। इसी सीक्वेंस में हम अपनी पढ़ाई क्लासेस करेंगे। इससे अलग से मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगा। अगर किसी को कोई भी सवाल है, या क्लास के रिलेटेड, या शारदा लिपि के किसी भी चीज कंटेंट्स के रिलेटेड, जितना मैंने बोला, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, तो प्लीज बता दीजिए। दो दो स्मॉल क्वेश्चंस। वन इज दैट आईओएस में भी है कि ओनली एंड्रॉयड? नहीं, अभी हमारी टीम काम कर रही है, आईओएस में अभी तक नहीं है। इनफैक्ट लास्ट वीक उन्होंने काम शुरू किया है, लगभग 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि आईओएस में ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। और ये आपने पेन के बारे में बात की। हाँ जी। व्हाट डू वी राइट ऑन अमेजोन? मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप में आपको लिंक। इज इट दैट कैलीग्राफी पेन? कैलीग्राफी पेन, हाँ। ओके ओके ओके, नाउ आई सी इट बिकॉज इट कैलीग्राफी वाज पेन, हिडन बिहाइंड द स्क्रीन। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, कैलीग्राफी पेन है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम लिखेंगे हमको ये देखना है कि जब शारदा एक कैलीग्राफिक आर्ट है, ये जैसे ये लिपि बनी है, जिस हिसाब से हमने इस पर काम किया है, जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगा कि बहुत ही सुंदर लिपि है। और उस सुंदरता को, उसके साथ उसको सराहना और उसके साथ लिखना, वो इंटरेस्ट। हमारे पास, हमारे टीम में बहुत सारे कैलीग्राफिक आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं आपकी उनकी शेयर करूंगा। आपको सच में लगेगा कि मतलब क्या क्या सुंदर इन्होंने काम किया। वो इसलिए क्योंकि वो लिपि खुद सुंदर है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको आप, ये नहीं कि बॉल पॉइंट पेन से जैसे बाकी लिखते हैं, थोड़ा अगर इसको थोड़ा अच्छी तरह लिखेंगे तो आपका इंटरेस्ट और जाग जाएगा। आज ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ, और एनी और क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके।
one more. Uh, in relation to Sanskrit, हाँ, what is the Sharda and Sanskrit relationship? संस्कृत इज भाषा, Yeah. शारदा इज द स्क्रिप्ट। Okay. और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना जरूरी है कि जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है शारदा लिपि में, क्योंकि बहुत बहुत, मैं तो कह रहा हूं कि लगभग अगर मैं काउंट करूं तो 10-20 हजार ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट होंगे जो कुछ डिजिटाइज्ड है, कुछ डिजिटाइज नहीं है, किसी के लोगों के घरों में भी पड़े हैं या ऐसे भी है। 99% जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है वो संस्कृत भाषा के हैं। कश्मीरी थोड़े से है, जैसे ललवाक है, रुब्बवानी वाक है, या थोड़े से कुछ और होंगे, बट ज्यादातर ज्यादातर जो भी भाषा यूज हुई है वो संस्कृत ही यूज हुई है। ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। लेकिन हाँ, इसमें हमारा प्रयत्न ये है, क्योंकि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के को हम थोड़ा पुश कर रहे हैं कि वो नर्सरी क्लास में ये जस्ट जो मैं प्राइमर्स दिखा रहा था वो इंट्रोड्यूस करे, ताकि छोटे बच्चे शुरू करें ये स्क्रिप्ट। ये है अभी इसमें जद्दोजहद है, इट इज स्टिल नॉट गोइंग वेल विद द गवर्नमेंट, उनको भी इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मगर हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जल्दी आ जाएगा। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस और वी स्टार्ट? वी कैन टेक टू मोर मिनट्स, नो प्रॉब्लम। हमको भागना नहीं है, आराम से करेंगे। या करेक्ट, गुरुमुखी। Gurumukhi is, I would say that yes, it has come from the Sharda script, but Sanskrit, as I told, we should not mix. Sanskrit is भाषा। जो मैं बात कर रहा हूं वो भी हिंदी में, ऐसे ही संस्कृत इज अ भाषा, शारदा इज द स्क्रिप्ट। ओके, प्राइमर 1 प्राइमर 2 कैसे ऑर्डर कर सकते थे? हम पहले अपने वेबसाइट में भी हमने डाले थे प्राइमर्स इसके लिए। ये प्राइमर्स मैं आपको वापस दिखाऊंगा, ये प्राइमर्स जो हमारे हैं। मैं वो लिंक भेजूंगा क्लास में, कहाँ कैसे ले सकते हैं आप। ये दो प्राइमर्स है, प्राइमर 1 और प्राइमर 2। तो इसको मैं लिंक भेजूंगा कैसे आप ऑर्डर करेंगे। इनफैक्ट अभी दिस इज अवेलेबल इन kashmirbazaar.net, या इन, मेरे को पूरी वेबसाइट देखनी पड़ेगी। तो वी कैन यू कैन ऑर्डर, बट अभी मत कीजिए। नहीं। पहले आप क्लास कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर रेफरेंस के लिए जरूर लीजिए। अभी आप बस जो मैं सिखाता हूँ उस पर आप ध्यान दें। ये बुक का मूल्य 100 रुपीज है, 100 रुपए की ये है, ये 100 रुपए की है, एंड दिस वन इज 175। इसके इसके एक्स्ट्रा भी हमने कुछ बुक्स पब्लिश की है related to the some Kashmir text, important text, like example Sharda Sarnaam or other things, but those are not related to this Sharda script. Any more questions? Okay, what we will do, I will close my presentation and let us start. I will keep this training very simple so that it is understood well, and then you also practice. I will share the what presentation. I'll make a PDF of it, and I will send it in the team. अभी मैं जो यूज कर रहा हूं, ये मैं नोटपैड सिंपल MS पेंट यूज कर रहा हूं, बट ऐसा आप वही मत यूज करें, आप कॉपी और पेन यूज करें उसके लिए। तो सबसे पहले आप, क्योंकि हमने शुरू किया है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे। हम पहले जो हमारा जो, क्योंकि सबसे पहले शुभ ये होना चाहिए, तो पहले हम ओम से शुरू करेंगे कि ओम शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं। दिस इज देवनागरी। जो भी मैं सिखाऊंगा
मैं देवनागरी को लेफ्ट में डाल के शारदा राइट साइड में लिखूंगा। तो हर एक मेरा सीखने का, सिखाने का यही एक तरीका होगा। देवनागरी के साथ साथ देवनागरी में कैसे लिखते हैं, और शारदा में कैसे लिखते हैं। देवनागरी तो सबको आती है ना। अगर किसी को नहीं आती है, वो मैसेज लिख सकते हैं, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा थोड़ा। आती है, आती है। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है कि ओम शारदा में कैसे लिखते हैं। यस, इट इज हिंदी, हिंदी को ही देवनागरी बोलते हैं। यस। तो अभी देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। फिर उसके बाद ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बारीकी से समझाऊंगा। ये एक 45 डिग्री का एंगल है। ये ऐसे बाहर आके ये ऊपर आया, और इधर से ये लाइन नीचे आई, और इधर चंद्र बिंदु, ये ऐसे। इसको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे करना है। आप ध्यान दें। पहले एक वर्टिकल लाइन ऐसे, फिर लगभग 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल, एंड टेक इट ऑलमोस्ट टिल हाफ। हाफ मतलब, मेरा मतलब है ये आधा पोर्शन। अगर देख लीजिए, ये आधी लाइन ये है ना, यहां तक ले लीजिए। उसके बाद यहां से ये आगे लाया, इधर आया, और इसके बाद ये पूरी ऊपर ले ली लाइन। इसको जोड़ सकते हैं। कभी कभार ये वापस ऊपर नहीं जुड़ेगी। और इसी पॉइंट से ये लाइन मैंने नीचे ली, और ये चंद्र बिंदु। इसमें एक चीज ध्यान देना है। मतलब जो मैं लोग गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये इतना बड़ा पेट निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ये गलत है। पेट देख लीजिए। जस्ट आप मेरे इस चीज का ध्यान दें कि ये बराबर अलाइंड है, ये दो चीजें बराबर अलाइंड है। थोड़ा सा अंदर है, लिखने में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बट आइडियली ये बराबर आना चाहिए। ये लाइन बराबर आनी चाहिए। लाइन बराबर आनी चाहिए मतलब ये नहीं चलेगा, ये देख लीजिए, इसके नीचे आया ना, ये करने की जरूरत नहीं है। और ये इसके बाहर कुछ और नहीं है, मतलब ये एंड है, ये एंड है, ये बाहर, ये बस इधर है, ऐसे करके ये एंड है। इसके आगे ये करने की जरूरत नहीं है, ये और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, एक और बार दिखाता हूं, फिर हम इसको, अच्छा, फिर चंद्र बिंदु का भी बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये आया लाइन, फिर ये 45 डिग्री आधे पोर्शन तक अपने अंदाज से मेरे को, फिर ये ऐसे, फिर ये ऊपर आया, ये ऊपर जुड़ा नहीं ना, तो उसको वापस जोड़ो, क्योंकि इसके साथ आना चाहिए था। और यहां इसी पॉइंट से ये लाइन नीचे लाई, और चंद्र बिंदु के लिए क्या किया, ये ऐसे, तो ये बिंदु। और चंद्र बिंदु भी क्या है, ये ऐसे नहीं है, ये गोल नहीं है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा राइट में है, और ये ऐसे है। सी हियर, इट इज नॉट ए सर्कल, इट इज नॉट ए सेमी सर्कल। ये कप नहीं है, पूरा ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है। देवनागरी में ऐसे करते हैं, मगर शारदा में मैंने जैसे पहले ही बोला, थोड़ी सी आर्टिस्टिक हमको करना है। तो क्या करना है उसके लिए, ये थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। अगर मैं इसको नॉर्मल पेन से लिखूं, क्योंकि सब लोग समझेंगे, अरे इधर तो इनके पास कैलीग्राफी है, ये इतना कर पाएंगे, अगर हमारे पास नॉर्मल पेन है तो हम कैसे लिखेंगे। अब देख लीजिए, मैं लिखूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको वापस ये करेंगे। देख लीजिए, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और ये ऐसे आया। ये हो गया ओम।
बहुत सारे जगह में आपको ओम ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल समझने के लिए, क्लास के लिए आप ये वाला फॉलो कीजिए। मैंने सुना है कि इट इज रिलेटेड टू पूर्णमासी एंड अमावस्या, 2 फोर्टनाइट्स के लिए जिस हिसाब से वो तिथि चलती थी, उस हिसाब से वो ओम का आकार चेंज करते थे। बट इसके बारे में रेफरेंसेस नहीं है, जितना मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ। वट एवर आई हैव हर्ड, इट इज समथिंग डेफिनेटली रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मून्स। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट एस्पेक्ट, लेट्स नॉट गो इनटू द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। बट टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपल, I will draw it once again. Om. Here. ये मेरा माउस कभी कभार शेक करता है बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्मूथ सरफेस ऑन विच it has to come, but that is, and there, and then bindu. And you don't need to, very important point, you don't need to scribble. Just form naturally, just write as natural as you can. You don't need to do any additional efforts. मतलब क्या मेरा मतलब ये कहना है, just if you have, like, if I have a simple pen and if I'm doing it, keep it very simple, as simple as it is. जितना उसको आसानी से रखोगे उतना आपको इंटरेस्ट लगेगा, बस ऐसे। इसमें इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? दिस वाज ओम। एक और चीज, one important point to note here, again I told you the mistakes, right? Do not do like this. And some people also, what they do, I'll show you some common mistake. This is one mistake people do. And some people, what they do the mistake, they put the line first, and after that they bring it here at this point. That is not correct. It has to meet at this junction. This junction is a junction of three lines joining. You see here, and this has got very importance. ऐसे ही नहीं बना ये तीन चीजें यहां जुड़ रही है। यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से ये आया, कि तीनों एक ही जगह मिलनी चाहिए, और फिर बिंदी। ये हो गया ओम। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? विल मूव अहेड, इसके आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो अक्षर है वो है अ, जिसके ऊपर हमने मंत्र भी पढ़ा, अनुतर। अ। अब अ को शारदा लिपि में कैसे लिखते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले पहला अक्षर है ना, पहला अक्षर कैसे शुरू होता है? हम शुरू किस चीज से करते हैं? कोई भी काम कैसे शुरू करते हैं हम, कोई बताएगा? नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं अगर हमको अ, पूजा करनी है या कोई भी काम आरंभ करना पड़ता है, सबसे पहले हम किसकी आराधना करते हैं? गणेश जी की। गणेश। गणेश चतुर्थी। हाँ, हमारे अ का भी वैसा ही आकार है। अ में क्या है, पहले जो गणेश का जो ट्रंक है ना, ये देख लीजिए, ये आएगा। फिर ये गोल आके ये इधर आएगा, ये इधर। पहले मैं बनाऊंगा फिर थोड़ा इसको समझाऊंगा, और फिर उसके ऊपर शिरोरेखा आर पार। बहुत ही मतलब साइंटिफिक स्क्रिप्ट है ये, बहुत रिसर्च हुआ होगा इस स्क्रिप्ट, जिन्होंने भी ये अक्षर माला निकाल ये की है, जिन ऋषियों ने किया होगा बहुत सोच के। मतलब जब हम आगे आगे पढ़ेंगे
तो आपको इतना समझाएगा कि इतनी इतना डीप कैसे हो सकता है एक एक मतलब, क्योंकि आप ये समझो कि मतलब जब हम अक्षर पढ़ते हैं, ये वेस्टर्न नॉलेज नहीं है, वेस्टर्न नॉलेज अलग चीज है। हम लोग अल्फाबेट्स को, स्वर व्यंजन को, अगर हम पानी नहीं पढ़ते, अष्टाध्यायी पढ़ते, तो हमको समझ आता है कि जो व्याकरण है, जो भी है, इन इस ये कितना 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 डीप साइंस है। मुझे तो लगता है पाणिनि जैसा कोई व्याकरण क्या साइंटिस्ट ही कोई नहीं हुआ होगा कोई। तो ये जो अक्षर है, ये जो होते हैं, इनकी डीप रूटेड मीनिंग्स होती है। ऐसे ही ये लिखने के आकार की भी बहुत डीप रूटेड मीनिंग्स है वो। हाँ, हो सकता है क्योंकि अब बहुत सारे हमारे जो भी थे मैन्युस्क्रिप्ट है, खत्म हो गई, जलाए गए, या जो भी कुछ है, अब हमारे पास वो रिलेवेंस नहीं मिलती है आज के टाइम पर। कुछ कुछ मिलती है, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में वो आप लोगों को जो श्लोक का पढ़ा था, हर एक अल्फाबेट्स के, दैट वाज फ्रॉम मालिनी। बट इट इज इंपॉर्टेंट, एवरी अल्फाबेट इज इंपॉर्टेंट। सो मैं दोबारा बनाऊंगा इसको, फिर हम इस पर दोबारा ये करेंगे। जितना अच्छा आप इस गणेश के का ट्रंक को बनाएंगे, उतना आपका अच्छा बनेगा। ये ऐसे है, इसको ऊपर लिया, फिर इसी लाइन को, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, नीचे आया, फिर इधर गोल किया, गोल किया, फिर ये, फिर इस लाइन को ऊपर लाया, इस लाइन से नीचे लाया, बराबर उसके नीचे, फिर थोड़ा सा और नीचे लाके, ये मैंने इधर राउंड किया, और फिर इधर ओम किया। I will just draw this with a normal pen so that it will become easy for you to follow how it will look. Then I will also talk about some mistakes which you can do, because I have been doing this from last 10, 12 years. I know what mistakes students will do. We will try to cover those also. See here. ये ऐसे आया, ये सर्कल here, इससे थोड़ा सा नीचे, ये इधर आया, ये आ गया सम मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, क्या क्या करते, अभी मैं वो बताता हूं। फिर हम वी विल टेक क्वेश्चंस आल्सो, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग ये ऐसे करके ये ऐसे लाते हैं। देख लीजिए, ये इतना ज्यादा गैप देने की जरूरत नहीं है आपको। एस्थेटिकली ये अक्षर अच्छा लगना चाहिए। देखो, ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है ना, यूनिफॉर्म, ज्यादा भी दूर नहीं जाना है, ज्यादा नजदीक भी नहीं आना है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं लाना, बिल्कुल पास में नहीं लाना है। मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल ही एकदम से आप यहां लाओगे तो एकदम उठाओगे, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो, मगर ज्यादा दूर डिस्टेंस मत दो। और दूसरी चीज, ये जो मैंने सर्कल किया, ये इतना नीचे लाने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए, it is around, that round is starting where this ends, approximately वही है। उससे ज्यादा मत लाओ, उससे ज्यादा। जब भी मैं ये बनाऊंगा, जब ये आया, इधर आया, इसके बस इधर से मेरे को थोड़ा सा ही नीचे लाना है, ताकि मैं इधर ये करूं, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग शिरोरेखा को यहां से लेते हैं, कुछ लोग शिरोरेखा को सिर्फ इधर से लेते हैं और इधर तक खत्म करते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। शिरोरेखा आर पार पूरी, इधर से भी बाहर निकलनी चाहिए, उधर से भी बाहर निकलनी चाहिए। मैं एक और बार दोबारा बनाऊंगा, देन वी कैन। ये ऐसे आया, ये ऊपर आया, ये ऐसे आया, और ये लाइन भी उतनी ही डालनी है, ये ज्यादा ऊपर नहीं करनी है। और उसके बाद शिरोरेखा। अब एक सवाल आ सकता है, सर पहले मैं शुरू रेखा लिखूं कि पहले मैं अक्षर लिखूं? आपकी मर्जी है। कुछ लोग पहले शुरू रेखा लिखने में कंफर्टेबल होते, कुछ लोग जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसा कर सकते हैं।
इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और दूसरी चीज, जब मैं ये नीचे लाता हूं, ये ट्रायंगल मत बना दीजिए, ये ट्रायंगल नहीं है, नॉट ए राउंड, ये गलत है। ये राउंड आना चाहिए। ये जब मैंने ऐसे लाया, ये राउंड है, ये राउंड है, ये देखो, दिस राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इफ somebody हैज क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। कैन वी गो फॉर आ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए डू वी नीड दिस स्क्वायर बोर्ड्स और यस, व्हाट टू आई विल। लाइंस के बीच में लिखना है? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। या प्रैक्टिस के लिए नहीं, नहीं, प्रैक्टिस के कोई भी नोटबुक ले लीजिए, कोई भी हाँ, नोटबुक ले लीजिए, मगर अगर आपके पास बॉक्स वाली नोटबुक होगी, वो बेटर रहेगा, क्योंकि अलाइनमेंट आपको थोड़ा अच्छा बेटर रहेगा। रहेगा, ठीक हाँ। है। और दूसरी बात प्रैक्टिस के लिए, जैसे हमने नर्सरी क्लास में जब हम करते थे, मेरा मतलब ये है कि ये आ गया, फिर और एक आ गया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, फिर यहां लिखा। राइट इन रोज एंड कॉलम्स, थोड़ा आपका प्रैक्टिस पूरा अच्छी तरह आ या जाएगा। जैसे जैसे छोटे बच्चों का रहता है ना, उसी उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल भी डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा किस तरीके से आपको करना है। तो वैसे ही आप प्रैक्टिस कर दीजिए। और व्हाट्सएप में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 50 स्टूडेंट्स है अभी, तो शाम तक और होंगे, क्योंकि लोग शाम को भी देखेंगे कुछ लोग। तो असाइनमेंट ज्यादा, इसलिए हमने क्या किया, एक ड्राइव लोकेशन रखी है, आप उसको सेव करके उस ड्राइव लोकेशन में सेव कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी जो बात नहीं कर रही, अगर वो अपना म्यूट करेंगे। ओके। अभी नेक्स्ट अक्षर आ। अ को हम मानते हैं चित्त शक्ति, इट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ लॉर्ड शिवा। व्हेन वी टेक 36 तत्वास of in Kashmir Shaivism, from Shiva to Prithvi, is the first element, or I would say, if I take it from Purusha to Shiva, is the Shiva Tattva. So ओके, आ कैसे लिखेंगे? से ही आ है। आ कैसे करेंगे हम? सेम जो वो गणेशा वाला, वो उसको सेम रखा। ये वहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, अभी तक जो मैंने बनाया यहां तक कुछ डिफरेंस, बस ये सेम है। इसके आगे में मैंने राउंड किया था, आ में क्या करता हूं, ये ऊ की जैसी मात्रा नीचे डालता हूं, ये बन गया आ। बस इतना ही डिफरेंस है। दोबारा बनाऊंगा। आ आ इज आनंद शक्ति। जब हम बहुत ही उत्साह में होते तो आ ही आता है, वो है लॉर्ड शिवा की आनंद शक्ति। दैट इज आ। दिस इज आ। ये जो उक की मात्रा है, इसमें ध्यान रहे, ये ऐसे नहीं आए। बहुत सारे उक ऐसे करते, देवनागरी में चलता है, शारदा में ये हम नहीं करते। शारदा में जो उक की जैसी मात्रा आती है, ये शेप आती है। इस शेप को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कर्व करके, फिर ये ऐसे ऐसे आया। और ज्यादा ऊपर भी नहीं लिया, ज्यादा ऊपर नहीं लिया, बस इसके लाइन में कर दिया, एक ही लाइन में ये आया। ये आ गया आ। अगर मैं इसको सादे कलम से लिखूं, बस यहां रोका, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद
जो शिरोरेखा थी वो वैसे ही जैसी थी। ये थोड़ा सा इधर छोटा एक बैंड आना चाहिए, बस। ये आ गया आ। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? अभी हमने ओम सीखा, अ सीखा और आ सीखा। इसमें कोई एक और बार कर सकता हूं मैं। यहां रोका थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट करूंगा ताकि आपको समझ आए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने देखा, ये मैंने इधर से नहीं शुरू किया, बिल्कुल लाइन से नहीं शुरू किया। मेरा मतलब ये था, जब मैंने ये डाला तो मैंने बस इधर से नहीं शुरू किया। ये नहीं है, थोड़ा सा एक बाएं तरफ आके फिर मैं लिया उसको। थोड़ा एस्थेटिकली वो अच्छा लगेगा। फिर ये एक्चुअली ये टच होना चाहिए। दिस इज आ। ये बन गया आ। इसमें कोई डाउट? अभी हम और दो करेंगे आज के लिए, फिर बाकी कल करेंगे। फिर तीसरा आ गया ई। ई शारदा में क्या करते हैं हम? ये जो मैंने ऊ की मात्रा बताई ना, वैसी सेम ऑलमोस्ट व्हाट आई शोड यू इन दैट ऊ मात्रा, एंड देन स्लीपिंग एस ऑन द टॉप। दिस इज ई। आई विल डू वंस अगेन। इट इज लाइक एन ऊ की मात्रा here and a horizontal S here. This is a very important point and very common mistakes what students do here. This they will do okay, but this one what they will do, they will do this, which is not correct because of the reason this have to align. Both what I'm showing on the top and that bottom has to align together. They have to be in the same line. That is point one. And point two, this S, whatever I'm showing here, has to be symmetric. Symmetric, when I'm saying, it cannot be like this. It cannot be like this. It has to be symmetric, means it has to be like this. दोनों सेम आने चाहिए, मिरर। So that is very important point to note down. So I will draw once again. If I have to write with normal pen, nothing changes. Here, another point, not this. This should not join. इसको जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ना नहीं है, that is not correct. अलग रखना है इसको. It is separate. थोड़ा सा ये करके फिर ऊपर एक एस की मात्रा आई। ये हो गया ई। And then next is E, what I showed in my presentation also. What I told you is mentioned in Saundra Lahari. E is written in Sharda Lipi as, make a line from center, horizontal line, make a triangle here and two dots on top, on the either side of this line. इन दोनों के बाएं से एक, दाएं से एक. So if I have to do once again, here, here, add a triangle, then two dots. If I have to write it with a normal pen,
Here, triangle, one dot, two dot. This is E. Any questions? A small question, sir. Yes. राकेश जी, इसमें जो नीचे आपने जो ट्रायंगल छोटा सा बनाया है, हाँ अ, ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम पेन, कलम या पेंसिल से जब भी लिखें तो हमें एक थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट मारना है कि हम या तो ऐसा गोला मतलब नो। गैप देते हुए बीच में ट्रायंगल दें या एक नॉर्मल बस एक एंगल करते हुए काट के दें। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, मैं करूंगा, फिर आप बता दीजिए अगर आपको कुछ डाउट है। ये देख लीजिए, ये आया और ये आया, सॉरी मेरा यहाँ ये माउस शेक हुआ, बस ऐसे नीचे ये आया, ये ऐसे लाया, ये ऐसे किया, ये ऐसे लाया, बस बस। और जैसे एक और दूसरा सवाल इसी से ही, जैसे आपने ओम में बताया था कि चंद्र बिंदु का हाँ की जो दिशा है, क्या वो यहाँ पे भी हमें कॉन्शियसली एफर्ट ध्यान देना है, या यहाँ पे बिंदु का चंद्र बिंदु का तरीका नॉर्मल ही है कि ये बिंदु नहीं, ही होगा? मतलब वहां मैंने क्या कहा था अभी, मैं जब मैंने ओम बनाया था तो हाँ जी। ये ओम था, तो ये मैंने बोला था, ये इसमें ये ऐसा नहीं है, ये हाँ सर। ओके ऐसा ओके। है। इट इज ओके लाइक ओके दिस, सर। ठीक है ठीक इट लाइक Yeah. दिस। इधर तो सिंपल बिंदु है, जस्ट इधर दो डॉट्स है, उधर वो चंद्र है। वाला नहीं है ना, इधर बस ठीक है बिंदु है, ठीक है दो बिंदु ठीक है। है। थैंक यू। जो हमारे एक 3 साल कोविड के टाइम, जब हमारी क्लास चल रही थी, बेंगलोर में वो क्लास ले रहा था, तो एक मीन्स एक स्टूडेंट्स, जब मैंने ये मुझे तब तक नहीं पता था कि इसमें ये सौंदर्य लहरी में रेफरेंस है। तो फिर उन्होंने हमेशा, उनको ये क्वेश्चन था कि सौंदर्य लहरी में ये जो शंकराचार्य जी ने ये श्लोक लिखा, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, इन्होंने किस चीज को बोला, क्योंकि उनको शारदा लिपि पता नहीं थी। फिर जब मैंने उनको समझाया कि शारदा लिपि में ई लिखते, देन ही कनेक्टेड दैट दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज द इंटरप्रिटेशन इन इन सौंदर्य लहरी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डू नॉट नो अब कितनी पुरानी स्क्रिप्ट होगी। सो मैं व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट आज जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप करूंगा, देन वी विल एट द एंड वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस और व्हाट। हमने ओम पढ़ा, अ, आ, ये ई। तो हमने क्या किया, एक्चुअली इट्स अ डॉट, जस्ट डॉट। Yeah. Very nice.
नहीं आवाज आ रही, अभी वो कुछ लिख रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोग तो पेंसिल लेकर होंगे, तो उनको दिक्कत ना हो, उनको समझाने के लिए कि कैसा आएगा ये। थोड़ा मेरा माउस छोटे में थोड़ा शेक होता है, बट दैट इज ओके। यस। ओके, Excellent. एनी क्वेश्चन? Mm, कोई सवाल बिफोर वी क्लोज द क्लास? आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो भी आप असाइनमेंट करेंगे, मैं एक ड्राइव लोकेशन भेजूंगा, आप उस ड्राइव लोकेशन में सेव करें, मगर अपना नाम लिखकर, अपना नाम फिर .jpg। पिक्चर डालेंगे तो बेटर है, क्योंकि PDF लोकेशन साइज ज्यादा बढ़ा देता है। तो और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट विच एक्चुअली आई फॉरगॉट, आई शुड हैव टोल्ड यू। सो जो भी हम अभी अक्षर सीख रहे हैं, दिस इज वन स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग। शारदा लिपि, you can understand, it was there prevalent for more than 1500 or 1600 years. This script changed a lot, it evolved, बहुत सारी इसमें चेंज आई है। वो मैं कंफ्यूजन नहीं लाना चाहता हूं मेरी क्लास में अभी, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं उस शारदा उस स्क्रिप्ट, मतलब बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनको लगेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐसा, वो बहुत सारे वेरिएशंस के लिए हम एक एडवांस क्लासेस करते हैं जहां वो वेरिएशन समझाते हैं। उसके लिए डेम्बी जी का, जैसे मैंने बोला, उस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह है। मगर क्योंकि क्लास में बेसिक हम समझा रहे हैं, और जो मैं सिखा रहा हूं, दीज आर द अल्फाबेट्स विच आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द यूनिकोड। एज आई टोल्ड यू, हमारी ये जर्नी है कि डिजिटाइजेशन पर, इस पर काम हो। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कोशिश कर रहे हैं, दे विल आल्सो इंट्रोड्यूस इन ए नॉर्मल, जैसे लेटर राइटिंग में वगैरह वगैरह, वो सब भी हमारा काम चल रहा है। तो एक स्टैंडर्ड जो यूनिकोड अप्रूव्ड है, फिलहाल हम उसी पर ध्यान देंगे कि ये ऐसे है। उसके पुराने कैसे कैसे होती थी वो हम आगे उस पर ये करेंगे, अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ओके, आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? नहीं, जो असाइनमेंट आप देंगे उसको हाँ, हम एक नोटबुक पे बना के आपको उसमें हाँ, भेज सकते हैं कि आपके जो उसी में आप जो जो नोट आप मैंने जैसे बोला, ड्राइव लोकेशन में डाल के आप उसमें ये कर दीजिए। आई कैन पुट द पिक्चर देयर हाँ, आप उसमें पिक्चर डाल सकते हैं, करेक्ट। फ्रॉम आप माय उसमें, नोटबुक। मैं एक एग्जांपल तौर के मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। कुछ कुछ पुरानी, कुछ शायद है मेरे पास, अगर मैं शेयर कर सकूँ तो। एक मिनट। ये जो ये देख लीजिए। कैलिग्राफी पेन है उसका, ये कितना वाला लाना है? 1B, 2B, 3B आप क्या? आप तीनों रख लीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको तीनों यूज करने में अच्छा लगेगा। फिलहाल आप कोई भी यूज कर लीजिए। तो तीन, ओके। अगर जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसमें अगर आप ऑर्डर करेंगे तो तीनों आते हैं, तीनों साइज के आते हैं। श्योर। मतलब इस तरीके से, ये किसी स्टूडेंट ने, मेरे ख्याल से ये आज से 6 साल पुराना असाइनमेंट है, इस तरीके से स्टूडेंट निकल लिखा है। पर अलग अलग तरीके, जैसे आपको ये देख लीजिए स्टूडेंट्स ने कैसे असाइनमेंट्स की, इस तरीके से। जो लोकेशन में भेजूंगा आप उसमें उसमें सेव कर लीजिए। अगले क्लास में जो जो गलतियां हैं वो हम देखेंगे। मैं सारी मुश्किल हो जाएगा सब लोगों का असाइनमेंट चेक करना, मगर जो कॉमन मिस्टेक्स होंगे उसके अगले हर क्लास में पहले 10 मिनट हम देंगे कि पुराने असाइनमेंट्स में अगर कुछ गलतियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, हम उनको ठीक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार। चलिए थैंक यू। ठीक है। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार।